Hi everyone. In this video, I will be walking you through 10 GRE style questions to help you sharpen your skills. So let us start with the very first question. But before that, I'm going to start this timer right here. I'm going to set it up to 1 minute and see if you get done with it in a minute. It would take me more time, of course, because I would be explaining it to you. What you can do is you can actually mute my audio and see if you get done with it in a minute. So I'm going to start it. Alright, now question says P and Q are consecutive even integers. They're consecutive and they're even, and P minus 2 and Q plus 2 are consecutive even integers. अब consecutive even integers क्या होंगे कि अगर कोई एक 2 है तो अगला 4 होगा, ठीक है, 4 है तो 6 होगा. ये consecutive even integers होते हैं. तो अब हमें नहीं पता कि P बड़ा है या Q बड़ा है. इसके लिए we would be making use of a number line. पहली कंडीशन तो हमें ये बताया हुआ है कि P and Q are consecutive integers, and next they are saying that P minus 2 and Q plus 2 are consecutive even integers as well. So let's see how can we solve it. So if I make a number line, अब even integers अगर consecutive हैं तो of course उनका difference क्या होगा 2, यानी दो consecutive even integers का हमेशा difference 2 ही होता है, ठीक है. तो अगर यहाँ पे P है, alright, time's up. अच्छा, यहाँ पे P है. अगर मैं assume करती हूँ that P is less than Q. Since P and Q are consecutive even integers, तो Q would be here. इनके दरमियान 2 का difference आ गया, ठीक है. तो P minus 2 would lie यहाँ पर और Q plus 2 would lie यहाँ पर. अब पहली कंडीशन तो यहाँ पे हो रही है कि P and Q are consecutive even integers. They are. But are P minus 2 and Q plus 2 consecutive integers? No, they are not. P minus 2 और Q plus 2 के दरम्यान कितना डिफरेंस आ रहा है 1 2 3 4 5 6. और कंसेक्यूटिव की कंडीशन क्या है कि 2 इवन कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स उनका डिफरेंस होता है 2 का. तो इसका मतलब है कि P कैन नॉट बी लेस देन Q. एंड लेट्स सी कि P Q से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता. अगेन वी वुड बी मेकिंग यूज़ ऑफ अ नंबर लाइन. अब मैं अस्यूम करती हूँ कि P Q से बड़ा है. यहाँ पे Q आ जाएगा और यहाँ पे P आ जाएगा. 2 का डिफरेंस है, ठीक है. अब P minus 2 कहाँ पे लाई करेगा. P में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पर और Q plus 2 वुड लाई Q में 1 ऐड किया 2 ऐड किया यहाँ पर. तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. P और Q के दरमियान P and Q are consecutive integers and P minus 2 and Q plus 2 are consecutive even integers as well. और ये सिर्फ तब पॉसिबल हुआ है when Q is less than P. तो this implies P is greater than Q. So quantity A is greater than quantity B. And let me know if you got done with it in a minute. Now let's solve the next question. Again, I'm going to set the timer to a minute and see if you get done with it in a minute. You must get done with it in a minute because it's a very easy question. So the question, let me start it first. So the question says, if today is Saturday, what day will it be in 500 days? Now to determine what day it will be in 500 days, we would use a concept of the remainders. Now the days of the week repeat every 7 days. This means that after every 7 days, the same day of the week occurs. मतलब एक पूरा साइकिल है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे. एक साइकिल, फिर साइकिल आएगा, फिर साइकिल आएगा. अब हमें पता करना है कि कितने साइकिल्स हैं टोटल. और वो साइकिल्स हमें कैसे पता चलेगा. इफ़ आई डिवाइड साइकिल, एक साइकिल की लेंथ कितनी है 7. तो इफ़ आई डिवाइड 500 by 7, तो दिस गिव्स अस 7 71s are 497
और रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 3। अब टोटल टाइम्स अप, डिड यू गेट डन विद इट? अच्छा, 71 जो है वो आपका क्वोशंट है एंड 3 इज रिमाइंडर। 71 क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर? सो 71 वीक्स बेसिकली, यानी 497 आफ्टर 71 फुल वीक्स, यानी कि आपके पास 71 साइकिल्स बन रहे हैं। 71 साइकिल्स कंप्लीट हो गए और पीछे आपके पास रिमाइंडर 3 है। तो यानी आफ्टर 71 फुल वीक्स यू रिटर्न टू द सेम डे ऑफ द वीक दैट यू स्टार्टेड। तो वी स्टार्टेड विद सैटरडे तो 71 के बाद 71 फुल वीक्स के बाद आप सैटरडे पे ही ख़त्म होंगे। लेकिन उसके बाद एडिशनल 3 डेज़ हमारे पास है, सैटरडे के बाद संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। यानी यहाँ तक तो आपके पास 71 साइकिल्स कंप्लीट हो गए और इसके बाद ये एडिशनल 3 डेज। सो ट्यूसडे, if today is Saturday, then it would be Tuesday in 500 days. We have got another question that says if A and B are integers and then this condition, then A plus B could equal. Okay. अब a plus b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हाउ अबाउट वी स्टार्ट सिंप्लीफाइंग इट? सो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई बोथ साइड्स। 3a multiply b6 is equal to 500. So this can be written as a 1/3 multiply b 1/2, 6 is equal to 500. This gives us a 6/3 multiply b 6/2 is equal to 500 and a square multiply b cube is equal to 500. अब 500 और इसके दरमियान रिलेशन बनाने के लिए how about we prime factorize 500? That would be 500, 5 into 100, that is 10 square. This would give us 2 square and 5 square. So a square multiply b cube equals 2 square multiply 5 cube. अब टाइम्स ओवर a की वैल्यू क्या हो सकती है? a square multiply b cube is equal to 2 square multiply 5 cube. So we can say that a is equal to 2 and b is equal to 5. So a plus b could equal 7. Now, is this the only possibility? Notice we have square here, ठीक है? स्क्वायर जब भी होता है तो हमें 2 वैल्यूज़ कंसिडर करनी पड़ती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कि अगर आपका 2 स्क्वायर होता है या यहाँ पे -2 स्क्वायर होता है तो स्टिल यू वुड गेट 4 and 4। तो अगर यहाँ पे हम -2 भी कंसिडर करते, यानी a स्क्वायर b क्यूब को -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का क्यूब लिखें तो स्टिल वी हैव अ पॉसिबिलिटी दैट इज़ a की वैल्यू -2 हो जाए और b की वैल्यू 5 हो जाए और a प्लस b वुड बी 5 - 2 दैट इज़ 3। तो a प्लस b could equal 7 and a plus b could equal 3 as well. Now the next question says what is the unit digit of this value? इसका यूनिट डिजिट हमने बताना है। I'm going to start the timer. अच्छा, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 2 भी है क्योंकि देयर इज़ 8 हियर, ठीक है? 8 को हम 2 के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो वी नो दैट जब भी कोई नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है हमेशा यूनिट डिजिट 0 होता है ना। अब अगर यहाँ पे हमें मतलब इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से आप 2 भी निकाल सकते हैं एंड देयर इज़ अ 5 हियर एज वेल। तो 2 into 5 गिव्स यू 10। तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में देयर इज़ अ 10, तो इट वुड ऑलवेज और इट मस्ट एंड अप विद अ 0। तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन। लेकिन अगर हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, देन हाउ वुड बी सॉल्व इट? फिर हमें पता करना पड़ेगा कि कितने आपके पास टेंस हैं कितने, और हाउ डू वी डू इट? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें हमने ये चेक करना होता है कि
2 और 5 के पेयर्स कितने हैं, मतलब 2 क्रॉस 5, ये इसकी कितनी जितनी पावर होगी उतने आपके पास ज़ीरोज़ होंगे आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब 7 स्क्वायर, अब हमें पहले तो ये चेक करना होगा कि 2 कितने हैं यहाँ पे। 7 स्क्वायर 8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब, 9 3 9 और 5 ऑलरेडी। 7 स्क्वायर 9 3s are 2 की पावर 27, 3 की पावर 9, 5 की पावर 203। तो अब हम कितने पेयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 3 की पावर 9, 2 की पावर 27 मल्टीप्लाई 5 की पावर 27, और जो रिमेनिंग हो वो कितना होगा, 203 minus 27, that is 106। 7 square 3 9, 2 multiply 5 27। सो इस तरह के आपके पास 27 टेंस बन सकते हैं। तो अगर 27 टेंस हैं यानी 10 की पावर 27 है तो ऑफ कोर्स इट वुड हैव 27 ज़ीरोज़ आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। लेकिन इस क्वेश्चन में वी वर सिंपली आस्क्ड कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, और यूनिट डिजिट के लिए जब भी अगर आपको कहीं पे भी 5 और 2 नज़र आए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ज़ीरो होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने यूनिट डिजिट्स कितने ज़ीरोज़ हैं आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। एंड वी वुडंट गो फॉर 106 एक्चुअली, क्योंकि 2 की जो है 27 जो है इसकी हाईएस्ट पावर है, और 5 और इनकी कॉमन जो आएगी वो तो ऑफ कोर्स इट वुड बी 27, सो वी वुड यूज़ 27। So the next question says, if 1 over 20 cube is expressed as a terminating decimal, how many non-zero digits does the decimal have? Now let's start the timer. See if you can get done with it in a minute. Now I don't see any such solution as such, so what we can do is let's start simplifying it. 1 over 20 cube. But what I do is, मुझे जब भी इस तरह के नंबर बड़ा नंबर मिलता है तो I try to prime factorize it. So simply prime factorize it. This would give you 2 into 10, 2 5. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 2 square multiply 5 cube, and this gives us 1 over 2 6 multiply 5 cube. अब अगर तो हमें यहाँ पे 10 मिल जाता है किसी तरह से तो काम आसान हो जाएगा। This can be written as 2 cube multiply 5 cube multiply 2 cube। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 2 multiply 5 cube multiply 2 cube, इसकी further simplification होगी, that is 1 over or times up 1 over 10 cube multiply 2 cube, और फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 over 10 का क्यूब multiply 1 over 2 का cube, only because we had 1 in the numerator। अगर यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और होता तो आप होल की पावर भी नहीं लिख सकते थे इसको। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 0.1 क्यूब, और इसको आप लिख सकते हैं 0.5 क्यूब। अब हमें पता है कि जब भी इस तरह की आपको अगर नहीं पता चल रहा ना कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे, तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे एक डिजिट है और इसको आपने पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद यू वुड हैव 3 डिजिट्स, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.00। अगर 3 डिजिट्स हैं तो 1 तो होगा ही, तो बाकी ऑफ कोर्स दोनों ज़ीरो होंगे। इसी तरह से इसमें भी डेसिमल के बाद वी हैव ओनली 1 डिजिट, तो 1 को यू वुड मल्टीप्लाई विद 3, तो दिस गिव्स अस 3, तो इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद यू वुड हैव 3 डिजिट्स। ठीक है, तो अब 3, अब यहाँ पे 5 का क्यूब है ना, तो 5 क्यूब्स इक्वल 125, तो इसका मतलब है 0 के लिए तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं बची, सो इट गिव्स अस 125, 0.125। अब व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू तो यू वुड गेट
बल्कि मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन्होंने पूछा हुआ है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स कितने होंगे। तो 125 है यहाँ पे 1 है, इसको जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वुड भी नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होंगे वो 125 ही हो सकते हैं, ये ही हो सकता है 1 2 3। तो देयर आर 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स। और इसके अलावा एक और तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाता है कि अगर यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया था 1/10 क्यूब मल्टीप्लाई 1/2 क्यूब, ठीक है। इसको अगर लिख लें 0.1 क्यूब मल्टीप्लाई 0.5 क्यूब, and this can also be written as 1 multiply 10 raised to the power minus 1 cube multiply 5 multiply 10 raised to the power minus 1 cube। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें, दिस वुड गिव अस 5 क्यूब मल्टीप्लाई 10 raised to the power minus 3, और इसको 5 क्यूब मल्टीप्लाई 10 raised to the power minus 3 वुड गिव यू -6, ठीक है। तो जब भी ऐसे लिखा होता है 2 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -3, तो इसका क्या मतलब होता है कि डेसिमल के बाद यू हैव 3 डिजिट्स, तो 0 0 2 ये डिजिट तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो बाकी बच जाते हैं उनको हम 0 से फिल कर देते हैं। तो 5 क्यूब इक्वल्स 125 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -6। 10 raised to the power -6 इंडिकेट्स कि डेसिमल के बाद वी वुड हैव 6 डिजिट्स, 3 4 5 6। 125 यहाँ पे आ गया और बाकी जो हैं वो ज़ीरोज़ हो गए। तो हाउ मेनी नॉन ज़ीरो डिजिट्स डज द डेसिमल हैव? देयर आर 3 नॉन ज़ीरो digits. So the next question says, if y is divided by 5, the remainder is 2. If y is divided by 8, the remainder is 3. What is the value of y given that y is between 30 and 70? Now for these type of questions, I usually solve them with hit and trial method. Values put करके देखती जाए, लेकिन there is a procedure for it as well. So you start with whatever way that you find suitable, और उसके बाद I would explain the जो actual उसका method है उससे। Let's start it. So if y is divided by 5, the remainder is 2. So we need to find a number that when divided by 5 leaves us with the remainder 2. और वही नंबर जब 8 से डिवाइड करें तो आपके पास y को जब आप 5 से डिवाइड करें तो दैट लीव्स अस विद रिमाइंडर 2, और y को जब आप 8 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर 3 दे दे। आई वुड लाइक टू एक्चुअली अगेन यूज़ द मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल, और अकॉर्डिंग टू मी एंड वी हैव अ कंडीशन दैट y इज़ बिटवीन 30 and 70, तो हमें शुरू वाली वैल्यूज़ तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। 30, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 35 5 की जो हर नंबर होता है, जो भी नंबर होता है इट एंड्स विद 5, ठीक है। तो उसके बाद अगर रिमाइंडर 2 आता है तो उसका मतलब है कि 37, हमें इस तरह के नंबर्स चेक करने चाहिए। 37 और फिर 42 और फिर 47 टाइम्स अप, एंड देन 52 एंड देन 57 एंड देन 57 के बाद क्या आएगा 62 एंड देन 67, और इसके बाद क्योंकि कंडीशन है कि y इज़ बिटवीन 30 and 70, तो हमें सिर्फ इन वैल्यूज़ के लिए देखना है। और इसके बाद 8 के लिए क्या है कि 8 में हम इस तरह से तो कोई कर नहीं सकते, लेकिन जो वैल्यू होगी वो इन्हीं में से कोई एक हो सकती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 8 कौन सी ऐसी वैल्यू है जब हम उसे 8 से डिवाइड करेंगे दैट वुड लीव अस विद रिमाइंडर 3। 37 नो, 42 भी नहीं क्योंकि 8 40 होगा, 40 को डिवाइड करता है। 47 भी नहीं, 3 भी नहीं देता, 52 भी नहीं आएगा, 57 भी नहीं आएगा, 62 भी नहीं आएगा। 67 आ सकता है क्योंकि 8 में 64 आता है, 8 8 are 64 और 64 + 2 gives you 67। तो जब आप 8 से डिवाइड करते हैं, सॉरी इफ y is divided by 8 the remainder is 3। 64 में 3 ऐड करें तो you get 67, राइट। तो अब 67 एक ऐसा नंबर है कि when you divide it by 5 तो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 2, और जब आप उसे 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। और
कंडीशन ये है कि वो नंबर 30 और 70 के दरमियान है। इसके अलावा तो बहुत से ऐसे नंबर्स हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन ये थी कि y 30 और 70 के दरमियान है, तो 67 इज़ द नंबर। और अगर आपने हिट एंड ट्रायल से नहीं करना, पूरे प्रॉपर मेथड से करना है, तो हमारे पास एक डिविजिबिलिटी थ्योरम होता है। यूजुअली क्या होता है कि अगर हमें गिवन हो दैट a डिवाइड्स b, तो हम लिखते हैं कि b इज़ इक्वल टू a इंटू सम कॉन्स्टेंट, लेट्स सी k। यानी अगर हम कहें कि 2 डिवाइड्स a, तो 2 डिवाइड्स 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इज़ इक्वल टू 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट, वो कुछ भी हो सकता है। इन दिस केस इट वुड बी 4, 2 4s are 8। तो यानी की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 0 1 2 अप टू सो ऑन। हम इसको ऐसे लिखते हैं k इज़ इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन। और अगर अब ये तो a b को परफेक्टली डिवाइड करा था, अगर तो आपका कोई रिमाइंडर आ जाए तो हमें सिर्फ क्या करना होता है कि इसी इक्वेशन में हम एक एडिशन कर देते हैं रिमाइंडर का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें 2 डिवाइड्स 9, अब हमें पता है कि 2 9 को परफेक्टली डिवाइड नहीं करता, तो वी कैन राइट दिस एज 9 इज़ इक्वल टू 2, 2 4s are 8 एंड प्लस द रिमाइंडर। तो ये डिवीजन थ्योरम है, एंड उसके ज़रिए फिर जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब द क्वेश्चन सीज इफ़ y इज़ डिवाइडेड बाई 5 द रिमाइंडर इज़ 2। अब y का तो हमें पता ही नहीं है ना कि वो क्या है, y इज़ एन अननोन वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 5 की यहाँ पे मल्टीपल जिससे हम लिख रहे थे k का कांस्टेंट, ये आपके पास कांस्टेंट है जो 0 1 अप टू सो ऑन चलता जाएगा, प्लस द रिमाइंडर हमें गिवन है दैट इज़ 2। तो अब यहाँ से आपकी y की पॉसिबल वैल्यूज़ निकलती जाएंगी, तो दैट वुड बी 5 इंटू 0 प्लस 2 गिव्स यू 2। इसी तरह 5 इंटू 1 प्लस 2 गिव्स यू 7। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि y 30 और 70 के दरमियान है, तो हमें शुरू वाली वैल्यूज़ को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली चले जाते हैं। वी नो दैट 6 5s are 30, तो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 6 30 प्लस 2। तो अब ये y की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 32, लेकिन ये हमें तब पता चलेगा जब हम 8 वाली कंडीशन भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली 5 इंटू 7 प्लस 2 गिव्स यू 37, 5 इंटू 8 प्लस 2 गिव्स यू 42, 5 इंटू 9 प्लस 2 गिव्स यू 47। हमने तब तक करते जाना है जब तक मतलब y की वैल्यू आपने 30 और 70 के दरमियान रखनी है, और उसके लिए हमें वो सारी वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेंगी, 5 के लिए भी और 8 के लिए भी। 5 इंटू 10 प्लस 2 गिव्स यू 52, 47, 52, 11 प्लस 2 गिव्स यू 57, 5 इंटू 12 प्लस 2 gives us 62, 5 into 13 plus 2 gives us 67, and 5 into 14 plus 2 gives us 72. अब सिंस y 30 और 70 के दरम्यान है, तो हम सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली इनको चेक करेंगे, और इसके बाद फिर हमारे पास है if y is divided by 8 the remainder is 3। अब 8 के लिए हमें देखना पड़ेगा, 8 के मल्टीपल्स यहाँ आएंगे और 7 आ जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ से y की पॉसिबल वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है। अब 8 0 0 प्लस 3 3। अगेन y की वैल्यू 30 और 70 के दरम्यान है, तो हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं जहाँ हमें पता है कि y 30 के बाद ही आएगा। तो 8 4s are 32 प्लस 3 35, फिर 8 5s are 40 प्लस 3 gives us 43, फिर 8 6 are यहाँ से आ जाएगा 51, 8 इंटू 7 प्लस 3 gives us 59, और 8 इंटू 8 प्लस 3 gives us 67, और इसके बाद अगर हम करेंगे तो वो 70 से ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाएगी। अब आपने एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इन दोनों में कॉमन हो, जो भी वैल्यू इन दोनों में कॉमन होगी वो हमारा आंसर आएगा।
और दैट इज़ ऑफ कोर्स 67, जो हमने पहले ही देख लिया था सिंपल हिट एंड ट्रायल से। तो 67 एक ऐसी वैल्यू है जब आप उसे 5 से डिवाइड कर रहे हो तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है, और जब हम उसे 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आ रहा है। सो योर y इज़ 67. So the next question says the ratio of apples to oranges is 3:5 and the ratio of oranges to bananas is 4:7. If the ratio of bananas to grapes is 2:3, what is the ratio of apples to grapes? Okay. अब ये जो क्वेश्चन है ये ओवरलैपिंग रेशियोज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि आपको एप्पल्स और ऑरेंजेस की एक रेशियो गिवन है, फिर ऑरेंजेस से बनाना की रेशियो गिवन है, और बनानाज ग्रेप्स की रेशियो गिवन है, और हमने फाइंड क्या करनी है, रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ग्रेप्स। अच्छा, पहली रेशियो है 3:5, दूसरी इज़ 4:7 एंड दिस इज़ 2:3। अब ये हम ओवरलैपिंग रेशियोज़ में हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हम इसको एक ही में लिख लें, इससे ए रेशियो एप्पल्स रेशियो ऑरेंजेस, ऑरेंजेस रेशियो बनानास एंड बनाना रेशियोज ग्रेप्स, और यहाँ से ए और जी ये निकाल लें। और वो हम सिर्फ तब कर सकते हैं कि जब यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे भी ऑरेंज है तो इनकी वैल्यू सेम हो, ये बनाना है ये बनाना है, इन दोनों की वैल्यू सेम हो, सिर्फ तब जो है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे, एप्पल्स टू ऑरेंजेस रेशियो इज़ 3:5 एंड ऑरेंजेस टू बनाना इज़ 4:7। अब 5 और 4 को सेम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और रिमेंबर इस पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ उस नंबर को नहीं करना। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 3 4s are 12, 4 5s are 20, और यहाँ से इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें 4 5s are 20 एंड 7 5s are 35। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये दोनों तो सेम हो गई हैं लेकिन अब ये 35 और 2 जो है नहीं सेम। इस 2 को हमें 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 तो अब 2 का मल्टीपल है नहीं क्योंकि इट्स एन ऑड नंबर। तो 17 into 2 gives you 34। अगर हम इसको चेक कर लें 2 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो यू गेट 34, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 17.5। तो 17.5 इंटू 2 गिव्स यू 35। सो इसलिए इस रेशियो को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17.5 ताकि ये 35 बन जाए। तो 2 इंटू 17.5 गिव्स यू 35 एंड 3 इंटू 17.5 गिव्स अस 52.5। अब हमारे पास ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं 12:20 रेशियो 35 रेशियो 52.5। ये था एप्पल ऑरेंज बनाना एंड ग्रेप्स, और हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ग्रेप्स, दैट वुड बी 12:52.5। So we have another question in which we are provided with a triangle, actually 2 triangles। हमें क्या बताना है कि शेडेड, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या है, और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, पूरा ट्राइंगल, उसका एरिया कैलकुलेट करें, और उसके बाद ये जो छोटा ट्राइंगल है इसका एरिया कैलकुलेट करें, और बड़े में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी वुड बी लेफ्ट विद दिस पोर्शन। अब 30 60 90 और 40 45 45 90 की रेशियो वाले जब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब राइट ट्राइंगल आपके पास गिवन है एंड व्हेनेवर यू सी कि एक लेंथ x है दूसरी लेंथ 2x है तो हमेशा वो 30 60 90 रेशियो का ट्राइंगल होगा। तो 30 के ऑपोजिट आपके पास 90 के ऑपोजिट हमारे पास 2x है और दूसरी लेंथ x है, तो दैट इम्प्लाइज ये यहाँ पे आपके पास 30 होगा।
और फिर 60 के ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है x√3। तो ये एंगल 60 हो गया और यहाँ से आपके पास इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है, दैट इज़ x√3। तो अब ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस इज x एंड हाइट इज x√3। तो यहाँ से इसका एरिया आ जाएगा x² √3/2। लेकिन हमें इसका भी एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इनके एंगल सेम है ना, यानी जो एंगल इसका यहाँ पे है वो इसका एंगल है। सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, एंगल सेम होते हैं और जो साइड्स जो होती हैं उनका प्रोपोर्शन सेम होता है। सो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो द साइड्स दे मस्ट बी इन द सेम रेशियो। और इसके अलावा अगर हम इसको चेक भी कर सकते हैं, अब अगर आपने इसकी साइड्स, इसकी हाइट फाइंड करनी हो और इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, बेस हमें गिवन है दैट इट इज़ y। तो सिंस इनके प्रोपोर्शन सेम होता है, यानी कि अगर हम लिखें x/y इक्वल्स, दूसरी लेंथ आप कंसिडर कर लें 2x। अब यहाँ पे आपके y का तो हमें नहीं पता कि इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, लेट इट बी a, ठीक है, या फिर इसको एज कर लेते हैं हाइपोटेन्यूज। और इसी तरह से इसका जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ x√3 और y का जो छोटा ट्राइंगल है उसका हमें नहीं पता क्या है, तो उसको हम p लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन इसका हमेशा जब भी सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उसमें हम ये प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। तो x/y इज इक्वल टू 2x/h। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एज, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमें बेस तो गिवन है एंड वी ओनली नीड द हाइट। तो हम सिर्फ इन दोनों को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी x/y इज इक्वल टू x√3p। परपेंडिकुलर वुड बी इक्वल टू px xy√3 और p इज इक्वल टू y√3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है y√3। अब हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए ही नहीं है तो हम उसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, बेस आपके पास पहले ही थी। तो एक एरिया बड़े ट्राइंगल का हो गया और छोटे ट्राइंगल का, लेट इट बी A2। तो एरिया इज़ 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस इज़ already given that is y and height that we just calculated that is y√3। यहाँ से आ जाएगा y²√3। अब आपने इतने शेडेड एरिया का हमने बताना है, शेडेड रीजन का एरिया क्या है। तो दैट वुड बी बड़े ट्राइंगल में से छोटे का सब्ट्रैक्ट कर दें, a1 - a2, दैट वुड इक्वल √3/2 x² minus √3/2 y²। We can take √3/2 common and this would give us x² minus y². So this is the area of the shaded region. फिर एक और बहुत आसान क्वेश्चन है। Now this question says the measure of two acute angles in a right triangle are in the ratio 5:13. What is the measure of the larger angle? Again I'm going to start the timer. अब हमें पता है कि एक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं, ठीक है। और फिर ये भी गिवन है कि एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में ये तो 90 का हो गया, ठीक है। टोटल ट्राइंगल का जो सम होता है तीनों एंगल्स को व्हेन यू ऐड यू गेट 180 और एक तो हमें पहले ही पता है दैट इट इज़ 90। तो यानी x + y जो हैं दोनों, इनका सम 90 के इक्वल है। तो ये दोनों जो हैं ये आपके पास एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का सम हमें पता है दैट इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमें बताया हुआ है उनकी रेशियो क्या है 5 और 13, दो एक्यूट एंगल्स की। उनकी रेशियो पता है लेकिन हमें उनकी डिग्री मेजर नहीं पता, हमें नहीं पता वो क्या वैल्यू है, सिर्फ रेशियो गिवन है। तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू है 5x और इसकी वैल्यू है 13x, ठीक है।
अब 5x प्लस 13x हमें ये कंफर्म है कि इन दोनों की जो एक्चुअल वैल्यू है व्हेन वी वुड ऐड इट अप वी वुड गेट 90 और द टू वुड ऐड अप टू 90। वो इसलिए क्योंकि ये वाला चाहे जो कुछ भी हो इनका सम हमेशा 90 ही आना है। इन दिस केस राइट ट्राइंगल की बात हो रही है। तो जब आप इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू 5x है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 13x है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो यू वुड गेट 90। और इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 13 + 5 gives us 18x is equal to 90 and x is equal to 90 over 18. 90 divided by 18 gives us 5. अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 5, बट द क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। हमारे पास दो एंगल से, एक हमने कहा 5x और दूसरा 13x, तो लार्जर एंगल वुड बी 13 into 5. 13 into 5 gives us 13 into 5 65. तो लार्जर एंगल है 65। और इसी तरह से अगर आपने स्मॉलर एंगल चेक करना है तो दैट वुड बी 5 into 5 that is 25. And 25 and 65 indeed add up to 90 and 90 ये वाला कोई एक आपका इसमें से 65 है, कोई एक 25 है, ये तीनों मिलके 90 देते हैं हमें। Now this is the last question of the day and it is related to coordinate geometry. अच्छा, तो इसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि c + g is equal to 140, यानी ये c है और ये g है। When you add them up you get 140 और हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, k, ये वाला। अब अगर आप इसे देखें तो ये हमें एक ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। CGI एक ट्राइंगल बना है, इन एंगल्स के अराउंड जो साइड्स हैं वो एक ट्राइंगल बना रही हैं और हमें पता है कि ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं व्हेन वी ऐड देम अप वी गेट 180। तो C + G + I जो है 180 के इक्वल हो गया। C + G is equal to 140 plus I is equal to 180. And this gives us the value of I. 180 minus 140 is 40. Now if I is 40 तो k की वैल्यू भी 40 होगी क्योंकि हमने वर्टिकल एंगल्स में पढ़ा था कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होता है। सो इफ़ दिस इज़ I एंड दैट इज़ 40 तो इसका मतलब है k वुड इक्वल 40 इज़ वेल। फिर इसका दूसरा पार्ट, नाउ वी आर गिवन दैट g इज़ इक्वल टू 90, व्हाट इज़ a + k। ये g आपको गिवन है दैट इट इज़ 90 और a + k हमने फाइंड करना है। अब अगेन ये एक ट्राइंगल बना रहा है C, G और I। C + G + I जो है वो 180 के इक्वल होना चाहिए। G इज़ गिवन दैट इट इज़ 90, तो C + I वुड बी इक्वल टू 180 minus 90 दैट इज़ 90। अब हमने फाइंड क्या करना है, A + K। अब अगेन वर्टिकल एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। इफ़ दिस इज़ C और ये A है तो इसका मतलब है C और A जो है वो सेम होंगे, तो वी कैन इस तरह से है ना, ये A है और ये C है तो ये दोनों सेम है, तो यू कैन जस्ट रिप्लेस C by A एंड सिमिलरली I और K भी सेम है तो सिंपली रिप्लेस I by K and this gives us the value of A + K that is 90। और फिर लास्ट पार्ट में वी आर गिवन दैट F + K इज़ इक्वल टू 150 और B की वैल्यू फाइंड करनी है। अब F ये है और ये K है। अब अगेन F और K जो है, F के ऑपोजिट ये वर्टिकल एंगल्स कौन कौन से, F और G और K और I, तो इसका मतलब है कि G + I वुड ऑल्सो इक्वल टू 150। G + I इज़ इक्वल टू 150 क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं और F और G सेम है तो सिंपली हमने F को G से रिप्लेस कर दिया और K को I से। Now G + I is 150। अगेन ट्राइंगल में अगर हम G + I + C करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 180। G + I is 150, 150 + C is equal to 180 और C is equal to 180 minus 150 that is 30। यहाँ से C की वैल्यू आ गई है 30। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B। B यहाँ पे, अब अगर
मैं ये एंगल बनाऊँ तो ये किसके ये हमारे पास लाइन का एंगल आ जाता है, दैट इज़ 180. यानी इफ़ यू ऐड बी एंड सी तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 180. और सी की वैल्यू हमें गिवन है दैट इट इज़ 30, तो बी वुड बी इक्वल टू 180 minus 30 and that gives us 150. And we are done for the day.